Hello guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. Thank you so much guys for those who've become members, and thank you so much for those who are about to be members. We keep reminding you right at the start of every episode. This is the 12th episode of Everything Cricket that we are bringing you. It's been great, in fact, to bring you all these insightful stories and insightful things into the game of cricket. And yes, as a lot of things progress in the game of cricket, we've kept adding on episodes and kept adding on these stories. But yes, if you want to encourage us and you want to keep us motivated, please join in as members. And of course, if you do not want to, sort of pay, then at least you get what the least that you can do is, of course, hit the like button and help us reach more and more people. There are a lot of people who are watching us. But unfortunately, only few are clicking the like button, which is absolutely free. So I urge you to do that right at the start of the video. Without any further ado, all right, guys, इंडिया वापस आ चुकी है और एक सीरीज है अगली के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे हैं विच इज गोइंग टू बी द बांग्लादेश सीरीज बट बांग्लादेश उससे पहले एक और सीरीज खेलने वाली है वो है पाकिस्तान के साथ बट बिफोर वी डाइव इनटू व्हाट बांग्लादेश हैज टू do when they tour Pakistan. And of course, a lot that is happening in Bangladesh right now, and they're finding it absolutely difficult. But all of that. But before that, I want to ask you, Ankit, कि एक नई तड़कती भड़कती न्यूज आ रही हमारे जो स्पेयर हेड फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के नाम से वो वापस जा चुके हैं एनसीए में और अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं अजीत अगरकर ने बोला है कि होपफुली वो बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज के लिए फिट हो जाएंगे क्या लगता है कि मतलब अगर शमी नहीं हो पाए फिट तो कौन आना चाहिए प्लेइंग 11? अगर देख शमी नहीं फिट हो पाए तो आपका रिवॉल्व होगा। होम पिच है तो आकाशदीप ने अच्छा किया है, आकाशदीप को उन्होंने खिलाया था। और एक प्लेयर है, माइट भी अर्शदीप, अर्शदीप को भी चांस मिल सकता है शायद। हाँ, अगर शमी फिट नहीं हुए, बट शमी फिट हो जाएंगे क्योंकि जो सीरीज स्टार्ट होगी 19 और 17 सितंबर से होगी। उससे पहले दुलू ट्रॉफी है, 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आई थिंक अजित आगरकर ने बोला है शमी को कि आप पार्टिसिपेट करो और उसमें खेलो, सो विल गेट एटलीस्ट गेम टाइम। यू विल गेट टू नो कि भाई तुम्हारी बॉडी साथ दे रही है, तुम्हारा पैर साथ दे रहा है कि नहीं। सो यार दैट्स एक गुड न्यूज। एक और बॉलर है इनफैक्ट धोनी जो जिसको बंगाल ने बनाने में काफी मदद करी वो है मुकेश मुकेश कुमार। कुमार, मुकेश कुमार। तो मुकेश कुमार का कुछ लग रहा है कि मतलब कैन ही मेक इट टू द स्क्वाड इफ इन केस शमी इज नॉट फिट? Considering how many fast bowlers we have in the country right now, we know these names because they've all played a few test matches. पर हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा भी है, हमारे पास कविरप्पा भी है, हमारे पास और कई सारे बॉलिंग बॉलिंग ऑप्शंस हैं इनके अलावा भी। तो प्रोबेबली आई थिंक अब इसमें ये होता है ना कि यार जसप्रीत बुमराह भी एनसीए से जब वापस आए थे तो वो वापस बॉलिंग की और वापस इंजरी की वजह से उनको गेम छोड़ना पड़ा और चले गए नहीं, मिस्ड आउट एन एंटायर T20 वर्ल्ड कप। विद शमी आई होप सिमिलर थिंग्स डोंट हैपन sorry, because Shami is just coming out of an ankle injury, and the amount of pressure that goes on those joints, especially the ankles, of a fast bowler is tremendous. Also, even if we have to miss out on Shami in the Bangladesh tour, we will need him in the Australian tour. So that's the larger goal. So right now, I think probably they want Shami to play a test match ऑस्ट्रेलिया से or पहले two. न्यूजीलैंड भी है। हाँ? ऑस्ट्रेलिया से पहले न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड भी है लेकिन वो होम में, they probably want Shami fit for the Australian tour more than anything else. So Shami's question about his fitness was raised during the press conference also. ऐसा नहीं कि अभी अभी उन्होंने रेस किया है। तो we'll have to wait and watch. I think Shami should be fine to perform, but the problem is कि यार बांग्लादेश न्यूजीलैंड की टूर के बाद इंजर्ड हो गया तो फिर क्या है? बड़ा सवाल तो यही है ना कि उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद आपके ले बैकअप जाओ ऑप्शन नटराज को, लेके जाओ ऑस्ट्रेलिया नटराज को। क्यों? क्यों क्यों नहीं चांस दे सकते हो? लास्ट लास्ट याद है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी? यार मतलब आप मैं नटराज ऐसे क्यों, मतलब ऐसे नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ क्यों, मतलब
क्यों यार, आप उसको लॉन्ग रोप दो, ही हैज डन गुड इन रेड बॉल क्रिकेट, क्यों नहीं दे सकते, मैं ये पूछ रहा हूँ। चलो शमी नहीं है, आपके पास सिराज है, आपके पास रहा है। बुमराह है, ठीक है, एक लेफ्ट आर्म लेके जाओ आप, एक पिंक बॉल टेस्ट मैच भी तो खेलना है आपको, जो 3 दिन में खत्म होता है, हम्म, हम्म। उसके लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बहुत सारे ऑप्शन है जरूरी नहीं है तीन दिन श्रीलंका। में खत्म हो, जरूरी नहीं है 3 दिन में खत्म हो। वो हो गया यार हमसे पिछली बार 3 दिन में खत्म, पर जरूरी नहीं है कि वो 3 दिन में खत्म हो भाई। एवरेज है भाई, लास्ट श्रीलंका अभी जब हम बैंगलोर में हम खेला एक था, वो भी खेलेंगे, वार्म अप भी खेलेंगे पिंक बॉल में। तो तो भाई जो लास्ट हुआ था, जो रिमेम्बर है 2022 में बेंगलुरु में हुआ था श्रीलंका के साथ, 3 दिन में, 3 दिन में खत्म हो गया था। नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शन है यार, आप नटराजन को ले जा सकते हो यार, क्यों नहीं ले जा सकते। लेकिन वैसे there are नटराजन के लिए situations- ना मुझे एक्चुअली बुरा लगता है कि उसने ना उसको चांसेस वैसे बहुत नहीं कम मिले। मिले हैं। ही वॉज ब्रॉट इन एज अ वाइट बॉल बॉलर, पर फिर वो गाबा टेस्ट में खिला लिया उसको, क्योंकि हम टीम ही नहीं बना पा रहे थे। मतलब इतनी सारी इंजरीज हो रही थी, ये हो रहा था, मतलब वी कुडंट रियली फील्ड 11। और फिर उसके बाद जब वो आया तब भी उसने अच्छा ही परफॉर्मेंस करके दिया यार, ऐसा नहीं कुछ बुरा या परफॉर्मेंस करके दिया। एंड इनफैक्ट इवन इन द वाइट बॉल रोप दैट ही इज बीन गिवन, उसने काफी अच्छा ही परफॉर्म किया है। बट इट्स जस्ट दैट he's I don't know, he's been very unlucky by not getting actually the amount of chances that he probably should have gotten. But of course, अगर शमी वैसे तो हो ही जाने चाहिए तैयार, और दुलीप ट्रॉफी शुरू हो रहा है आई थिंक फ्रॉम द 15th of September और फ्रॉम द 5th सितंबर। 5th September से। सो होपफुली या आई मीन इट बी ग्रेट अगर वो वहां पे जा सकते हैं, अपनी फिटनेस का एक टेस्टमनी दे सकते हैं। बट पोस्ट ऑफ कोर्स बोला गया है, बोला गया है, 22। आपको खेलना पड़ेगा। आप अगर आपको बांग्लादेश सीरीज में आना है तो आप ब्लू ट्रॉफी खेलो, टेस्ट करो, एंड देन यू कम बैक इन द हम्म। इंडियन साइड। Hopefully, he's there, he's fit, and he's back. All guns blazing. But of अगर course, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर लेफ्ट हैंडेड, जस्ट टू ऐड टू द आर्गुमेंट, अगर आपको लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर ही लेके जाना है तो आप खलील अहमद को क्यों नहीं लेके जा सकते? उसका भी तो रणजी ट्रॉफी रेड बॉल बहुत बढ़िया गया था लास्ट टाइम। एक्सपोजर के लिए ले जा सकते। खलील अहमद इज समवन who's taken a lot of wickets in the बट उसको T20 व्हाइट रणजी। बॉल में भी अभी तक पूरे चांसेस नहीं मिले हैं यार। सो मतलब बिना व्हाइट बॉल के चांसेस के तुम कह रहे हो कि मतलब ऑफ कोर्स इट डजंट रियली अफेक्ट थिंग्स, बिकॉज गंभीर ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि भाई अगर तुमने खेलना है तो ऑफ कोर्स आपकी रणजी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप टेस्ट खेलोगे T20 फॉर आईपीएल, आईपीएल फॉर T20, एंड ऑफ कोर्स योर विजय हजारे फॉर वनडेज। सो obviously your white ball performances should not affect that much about your red ball chances. सो अगर खिलाना है तो डेफिनेटली खिला सकते हैं, पर खलील भी अगेन हैज बीन वेरी अनफॉर्चुनेट। जब जब उसको लेके गए हैं तब तक उसको जो है 15 के स्क्वाड में या फिर बेंच ही किया है। तो आई विल आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके? आप लोग बोलते हो कि जो भी रेड बॉल क्रिकेट खेलता है, रणजी ट्रॉफी खेलता है, अगर वहां पे आप परफॉर्म करोगे डोमेस्टिक में तो आपके चांसेस आएंगे इंडियन टीम। Remind me again, who have we selected for the domestic performance in the current Indian team? Who have we rewarded for their domestic performance in the current test team? बोला तो आकाशदीप। if not current test, but of course आकाशदीप, आकाशदीप एंड सरफराज को अच्छे से किया था। मतलब सरफराज खान इज अ ध्रुव बिग जुरैल, एग्जांपल। ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल इज अ वेरी बिग एग्जांपल कि मतलब बात जितने नहीं। लोग इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इनफैक्ट ये लोग खेल के आए थे, एंड इनफैक्ट अजीत अगरकर ने काफी अच्छे से सिलेक्शन भी करी थी यार। मतलब सरफराज तो बिल्कुल ओवरराइप्ड आया था। ही फेल्ट लाइक राइट फ्रॉम बॉल वन कि यार ही इज रेडी फॉर टेस्ट क्रिकेट। या नहीं, अभी अगर चांस ध्रुव भी नहीं जुरैल, मिला है ना धवनिल, तो उनको पता है वो कॉन्ट्रैक्ट में रखा, उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिया बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट करके, कि भाई आपके लिए है, अभी नहीं तो 1 साल बाद आप हो इंडिया टीम में, विच इज द बेस्ट पार्ट। और आप देख लो जो जो भी बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट में है ना, आकाशदीप से स्टार्ट हुआ, मुकेश कुमार हैं, यश दयाल हैं, कविरप्पा है, तो ये लोग को मिलेगा चांस, ये टेस्ट मैच खेलेंगे ही खेलेंगे, दैट्स रीजन मैं दे ये हैव बोल बीन। रहा हूँ कि ध्रुव जुरैल था, ठीक है? अब ऋषभ पंत इंजर्ड था उस टाइम पे तो ध्रुव जुरैल आया। I think Shreyas Iyer also had an issue. No, not Shreyas Iyer. Someone also had an issue in the middle order. That is why we had Sarfaraz Khan coming. So now when these players are fit,
Okay, now let's say Mohammad Shami is going to be fit, Bumrah is going to be fit, Siraj is going to be fit. Will we be looking at domestic performances and saying, okay, this guy's performed in domestic, or do we go with someone who we've already played, like a Mukesh Kumar or an Akash Kipna? So that's why I'm asking that. Are we actually looking at domestic performances? If we are, then there are so many bowlers that we can choose from. So, Yeah. I think this year's domestic performance obviously is going to affect selection a lot, just in case if we have any injuries. Otherwise, Shami, Siraj, and then Bumrah walk into every Indian side, right? From Yeah. I think game वन. something. तो अदरवाइज अगर इनके अलावा अगर कोई आपको एक फास्ट बॉलर लेके जाना है, अगर आपको एक नेट बॉलर का ऑप्शन लेके जाना है ऑस्ट्रेलिया में, या फिर अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्क्वाड ऑफ 15 में लेके जाना है, तो ऑब्वियसली आई थिंक दिस इयर्स रणजी ट्रॉफी is definitely going to make a lot of sense, because of course ये दो phases में अभी होगा. So obviously देखना पड़ेगा कि मतलब किसकी परफॉर्मेंस है, and I think it is in the month of November and December that we are going to tour Australia. But उसके अलावा obviously मैं ये कहूँगा कि it is going to be a huge challenge now for Bangladesh to tour in all these circumstances, Dhwanil, to Pakistan now. And पाकिस्तान अभी एक तरीके से वो भी अपनी क्रिकेट को रिफॉर्म करने में लगा है, वो भी एक तरीके से काफी भरा हुआ है आफ्टर द T20 World Cup, and there are a lot of changes that are happening in the domestic circuit in Pakistan, and of course the country here in turmoil in Bangladesh. So a lot of background, a lot of political background, and two nations coming in together to play test match cricket. Your first thoughts? थोड़ा सा आयरनी है सिचुएशन में, और आयरनी ये है कि जब बांग्लादेश नहीं, ईस्ट पाकिस्तान था, तो ईस्ट पाकिस्तान वाले जो बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी थी, वो लोग बड़ा गुस्सा हो जाते थे कि यार हमारा तो कोई प्लेयर खेल ही नहीं रहा आपकी टीम में, आप तो एस पाकिस्तान खेल रहे हो ना, तो सारे तो वेस्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान से एक दो बंदे आएंगे, और वो एक दो बंदे भी इसलिए सिलेक्ट होते थे क्योंकि वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था ऑलरेडी अगेंस्ट द पाकिस्तान रिजीम. तो भाई शांत करने के लिए आपका एक बंदा क्रिकेट खेल रहा है, तो आप मस्त हो जाओ, ठीक है. Then of course when Mujibur Rahman and the Awami League was protesting and it was almost taking away East Pakistan for themselves, तभी भी the president of Pakistan used to use cricket as a bait. इंग्लैंड की साइड को टोर करा रहे हैं वो लोग ढाका में, जबकि इतनी वायलेंस हो रही है. इन द 1960s 70s की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. Then finally the Awami League won the independence and Bangladesh then became an independent country, after which obviously a lot of test matches were not played. 2000 उनको finally test status मिला. Now while they are going through this another turmoil of protest and the entire situation, it is Pakistan that they are touring right. The situation is so grim because as I said before also, that in the BCB, Bangladesh Cricket Board, the directors are normally appointed in coordination with the government and the prime minister. So yeah, now what has happened is someone like Mashrafi Murtuza, who was a member of the parliament, his house was burned down and he had to flee. The BCB chairman is not in contact right now because obviously they had to flee because they have an allegiance towards a particular party. So I think Bangladesh has now need to rebuild. In fact, the captain for Bangladesh lost a very close friend of his during these violences, and he said that something like this should not be happening to anyone else. And with that background, if they're able to travel, it's not the best atmosphere to play cricket in, especially mentally. So before the test matches start, I think players should be assured that their families, of their safety, etc., and then take it on from there. Because every time a country goes through a situation, no, cricket always takes a hit. It always takes a hit because your focus is not on cricket. And sometimes in these situations, cricket acts as a diplomacy tool. कि भाई चलो सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सब क्रिकेट खेल रहे, ताली बजाओ, क्रिकेट देखो. So it's a catch-22 situation, and it's quite ironic that Bangladesh is actually during such a protest is actually going to Pakistan. So okay. हमने इससे पहले भी बात करी है इनफैक्ट बांग्लादेश और बांग्लादेश की बैटिंग ऑर्डर के बारे में, बांग्लादेश के मतलब द एंटायर स्टाइल ऑफ प्ले के बारे में, एंड हाउ दे हैव बीन सॉर्ट ऑफ एबल टू कम through a lot of turmoil which already was happening. Of course,
लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई थी, with Bangladesh, was that in the last 5 years, or probably in the last 7 years, Bangladesh was in fact on the ups, मतलब एक तरीके से एक डेवलपमेंट फेज में था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फेज में था. देयर वाज लॉट ऑफ एक्सपोर्ट दैट वाज हैपनिंग, एंड द फिस्कल डेफिसिट जो उनका है वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत कम हो रहा था. But of course, with the student protest, and with Sheikh Hasina, now getting fleet, etc., etc., all of that stuff, of course, as you rightly mentioned, cricket एक बैक सीट ले लेगा. और क्रिकेट एक बैक सीट इसलिए भी लेगा क्योंकि क्रिकेट को एक्चुअली देखा जाए तो मतलब एक तरीके से बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बिलवड स्पोर्ट है, एंड इट इज द मोस्ट लव्ड स्पोर्ट इन बांग्लादेश ऑनेस्टली. पर उसके लिए फंड्स चाहिए. आपको अगर ये कराना है तो ऑब्वियसली उसके लिए एक फंड्स चाहिए. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होगा देखना कि अब बीबीएल, जो उनका बीपीएल, सॉरी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, वो किस तरीके से इफेक्ट होता है इन इन दीस सर्कमस्टांसेस. एंड ऑफ कोर्स, जैसे तैसे अभी वो दे आर अप्लाइंग, एंड विद सो मच गोइंग ऑन, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इफेक्ट हो रहा होगा कि कितना सब कुछ चल रहा है. एंड इट वोंट बी वेरी इजी टेक ग्राउंड ऑनेस्टली. इट विल डेफिनेटली नॉट बी वेरी इजी. बट स्पीकिंग ऑफ पाकिस्तान, जेसन गिलेस्पी, अंकित, एक नए कोच, एक नया जैसे कह सकते हैं चैलेंज उनके लिए आ गया है, विच इज पाकिस्तान क्रिकेट. पाकिस्तान क्रिकेट हमने पहले भी देखा है कि इतनी आसान नहीं है किसी भी कोच के लिए. बट Yeah. व्हाट डू यू थिंक कि जेसन गिलेस्पी क्या करने वाले हैं? यार ही विल ट्राई टू डेवलप द कोर, और वो उनका पहला एज अ कोच, दिस विल बी हिज फर्स्ट असाइनमेंट फॉर अ टेस्ट मैच. इससे पहले व्हाइट बॉल का हुआ तो गैरी क्रिस्टन थे, उन्होंने देखा ठीक है टीम अच्छी नहीं खेली, चली आई वापस. उसके बाद बहुत सारे बोर्ड मेंबर सैक हुए, बहुत सारे सेलेक्टर सैक हुए. अभी उन्होंने वकार यूनुस को अपना ये बनाया है शायद मेंटोर के रूप में. कुछ तो उन्होंने उनको दिया है पोजीशन टू लुक आफ्टर दी पाकिस्तान क्रिकेट एंड टू वर्क अराउंड दी डोमेस्टिक cricket. So let's see. There are few names who has been selected for Pakistan side. शाहीन अफरीदी को हटा के वाइस कैप्टन आपने बना दिया. किसको बनाया? आई डोंट रिकलेक्ट हिज नेम. शान मसूद. नो, शान मसूद तो कैप्टन है. वाइस कैप्टन हटा के किसी नए को वाइस कैप्टन बनाया. साउथ शकील को वाइस कैप्टन बनाया. शॉट शकील. साउथ शकील को वाइस कैप्टन बनाया. द लेफ्ट हैंडर बैट्समैन. अच्छा बैट्समैन. ब्यूटीफुल. हाँ, बहुत अच्छा बैट्समैन. So yeah. 8 की एवरेज है उसकी 10 टेस्ट मैच में. बहुत बढ़िया बैट्समैन. बहुत अच्छा. बट एक और है फॉर मतलब लीडरशिप, अगर उससे देखे तो ऑब्वियसली साउथ शकील वाइस कैप्टन है. एंड बट एक बंदा जो मेरे को थोड़ा सा इम्प्रेस करता है इन द सेंस, द वे ही कम्स अक्रॉस, इज शान मसूद, द पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन. अभी उसके ऊपर मतलब काफी प्रेशर होगा, क्या लगता है? Shan Masood is a very different character in the Pakistan team. Okay? Shan Masood was born in Kuwait, son of a banker, very educated family, did his schooling and everything in London, speaks amazing English, proper, very soft-spoken, well-spoken, nicely trimmed beard, not fighting, not aggressive. Press conference mein, Hanji, okay, this correct. Like, very different from what you imagine Pakistan to be, right? Because Pakistani cricketers come from humble backgrounds. They are a little different in demeanor. And this guy is essentially English when it comes to how he speaks, but of course plays for Pakistan. इस भाई ने अपना करियर 2013 में स्टार्ट किया था, एंड देन 2013 से चांस मिलते गए. Then he eventually was captaining under 19 sides and the Pakistan Shaheens and the Karachi Whites and etc. वो सब वो कैप्टन कर रहा था. Finally, before the Australia tour, he decides to become the captain. Yeah. Okay. Of course, they lose 3-0. However, the one thing that I want to remind you guys is Pakistan also toured Sri Lanka at one point in time. Okay. And when they were touring Sri Lanka, they had a certain batting approach, a positive approach, a attacking approach towards test matches. Okay. When they came to Australia, they lost. And Shan Masood in a press conference said, here Australia was averaging at a run rate of 4 runs per over. We were doing at 2.5. Sorry. So we want to play a little more positive.
a little more attacking, and we want results out of the game. So I'm asking, do you think this method is somewhat similar to another method that we keep talking about? Because that's what Pakistan wants to do, and that is why, because Shah Masood himself is very good in T20s. उसको बस 2022 वर्ल्ड कप में उसको लिया भी था, उसको बस ये इमेज बन गया कि आप रेड बॉल ग्रेड खेलते हो, तो वो पीएसएल में उतना ही अच्छा खेलता है. ही स्ट्राइक्स एट अबाउट 140 150 व्हिच इज गुड फॉर बहुत अच्छा खेलता है. अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो टीम सिलेक्शन है ना पाकिस्तान की, वो भी इस मेथड को सूट करने के लिए ही बनाई. एंड आई थिंक दिस इज आफ्टर देयर टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड दैट दे नाउ हैव रियलाइज्ड दैट वी कांट हैव एनी मोर ड्रॉज. क्योंकि पाकिस्तान में मैच होता है ना, विकेट इतना पाटा विकेट होता है ना, दैट देयर इज नो लाइफ, तो ड्रॉ ही होता है, कोई देखता ही नहीं है. तो यार पूरा टाइम किसी को फॉरवर्ड डिफेंस करने देखने आ रहा है. हाँ, वेरी गुड, लुक्स वेरी एलिगेंट, मजा आता है फॉरवर्ड डिफेंस देखने में, लेकिन कब तक? 50 ओवर तक. दे विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स, एंड टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स they have shown faith in this batsman called सईम आयूब. सईम आयूब ने कायदे आजम ट्रॉफी में एक इनिंग्स में 200, फाइनल में एक इनिंग्स में 200, दूसरी इनिंग्स में कुछ 100 108 कुछ रन बनाए थे. ठीक है, अगर सईम आयूब का कैरेक्टर टेस्ट करना है ना या देखना है कभी, तो एक टेस्ट मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है, पहली ओवर में 2 विकेट गिर गई थी और 1 for 2 था. ठीक है, सईम आयूब ने उसी ओवर में, उसके नेक्स्ट ओवर में मिचेल स्टार्क को 2 कट मारे 6 के लिए. उसके बाद पैट कमिंस आया, पैट कमिंस को फाट करके एक पुश मारा. उसके बाद कोई हेजलवुड आया, उसको कवर ड्राइव मारी. तो आई थिंक उसने 33 बनाए थे कुछ 28 बॉल में. इंडियन नेथन लायल उसको आउट कर गया. बट दैट इज हाउ सईम आयूब प्लेस. सो पाकिस्तान शाइन्स की ट्रेनिंग चल रही थी, सईम आयूब से बात की, भैया क्या सीन है आपका? तो जो मैनेजमेंट रोल देंगे वो बोलेंगे हाँ मेरी अग्रेसिव थोड़ी गेम है, हम चाहते हैं कि हम रिजल्ट्स पैदा करें, और मैं जैसे बैटिंग करता हूँ मैं वैसे ही बैटिंग करता रहूंगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है. उसको पूछा कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? वो तो मेरा कोई फेवरेट प्लेयर नहीं है, मैं सबकी बैटिंग एंजॉय करता हूँ, सबसे थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ, और ऐसे ही मैं खेलता हूँ. मेरा कोई और मेरे को बोला गया है कि ऑपोजिशन को प्रेशर में डालना है. तो पाकिस्तान is now this new approach of Pakistan on focusing on domestic, on playing aggressive and positive cricket, is very similar to another country where the coach puts his feet on the balcony and थोड़ा तेज तेज खेलने की कोशिश करता है. I'm not taking any names, I'm just saying. So हाँ, इसलिए ये वो है. वही टीम का नेक्स्ट डोर है, फिर से वही टीम का नेक्स्ट डोर है. हाँ, तो तीन है, इसलिए, बांग्लादेश इतना और है. मेरे को ऐसा लग रहा है इस बार रावलपिंडी में मैच है. आई होप पाकिस्तान प्रोड्यूसेस विकेट्स दैट प्रोड्यूस रिजल्ट्स. That's the reason Tony Humming comes over there, the Australian pitch curator. He Yeah. has 3-year contract with Pakistan. यस, तो क्योंकि पीसीबी यार चेयरमैन थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ, मैं नहीं यहाँ यार, स्पेंड कर. क्योंकि यार आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट मैच, बट वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका मैच में जेडन सील्स एक न्यू बॉल से बॉलिंग कर रहा था, टेम्बा बाउमा को एज लगा, स्लिप तक कैरी नहीं हुआ. जेडन सील्स पिच को देख के पिच पे चिल्ला रहा है वेकअप बोल, वेकअप वेकअप, क्योंकि बॉल बाउंस होके जा ही नहीं रहा वहां तक. तो इफ यू keep having test matches like this in Pakistan, there's no point watching, and there's no challenge. So that is why I think all of this is changing. Naseem Shah's back. back. Yeah, he's back. That guy doesn't quit. That guy doesn't quit. Naseem Shah is back, but one guy whom I am really waiting for is someone who actually impressed us a lot during the Australian tour, and उसने ना ये दिखाया कि भाई उसके पास बहुत ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है, because he sees the funny side, and he's usually very calm and he's composed. He's Amer Jamal, and hopefully वो थोड़ा Injured. सा फिट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उसकी बैटिंग प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है. बॉलिंग तो ऑफ कोर्स इज ग्रेट. आई मीन द वे ही कम्स अक्रॉस, he's a very, I don't know, मतलब एक बड़ा ही अनलाइक पाकिस्तानी मस्त है वो. कैरेक्टर वो मस्त है. है. वो मस्त आदमी है. But yeah, of course, Naseem Shah, I BBL भी still खेलता है वो, remember that BBL भी खेलता in the Asia Cup last year, जब उसने मतलब शुभमन गिल और रोहित शर्मा को डाल रहा था और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई कहाँ जानी है ये बॉल, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड लकीली फॉर अस डिड नॉट प्ले द नेक्स्ट गेम. ठीक है, जहाँ पे विराट कोहली और केएल राहुल उन लोगों ने क्या कहते हैं अनबीटन नॉक्स खेला था 100 का, इफ यू रिमेम्बर, इन श्रीलंका.
So yeah, I mean, it'll be great to see these guys again back in whites, and hopefully we get a good test match. We can even expect, probably even Sarfaraz Ahmed now to play in as the first wicket keeper, and not maybe Rizwan. So yeah, This, all of those this things, of happened in course. Australia. You know that, Uh, right? This happened in Australia where they arrested Mohammad yeah, Rizwan, and the only problem is this one. Yeah, Shan Masood and Sarfaraz Ahmed play for the same domestic team, and it is Sarfaraz Ahmed who's always trained Shan Masood और उसके मतलब wing में रखा है, and Shan Masood is in awe of Sarfaraz Ahmed because of the runs he scored in domestic and the kind of person he is, etc., etc. But उसका अगले मैच में ड्रॉप कर दिया था. But yeah, I think Mohammad Rizwan will play the kind of approach they want. Or maybe both can play. Maybe both can play, and Mohammad Rizwan Fields. They've done that before. So Yeah. both बहुत कम होगा. Chances I think will be very less. One of them will definitely have to sit out. But of course, there's another test match that's happening, which is West Indies and then South Africa. Unfortunately, the first day was hit with rain, and rain played a spoil sport at 45. But then, of course, we saw South Africa batting pretty well on a not so easy wicket. And फिर उसके बाद somewhere down the line, West Indies again, that middle order is probably just not showing its true potential. यार अब इसमें ना थोड़ा टैक्टिकल वो भी मेरे को लगा कार्लोस ब्रैथवेट का. आपके पास आपने पेस बॉलर लिए हुए और आपने दो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी लिए हुए. आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर एक तो बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया साउथ अफ्रीका की बैटिंग में. आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो थे उनकी जो लाइन एंड लेंथ थी वो कंसिस्टेंट नहीं थी. मतलब आप कॉन्स्टेंटली प्रेस नहीं कर रहे थे बैट्समैन को आगे आने के लिए. अब या तो बहुत ही ज्यादा फुल डाल रहे थे ड्राइव करने के लिए, या तो अब इतना टाइम दे रहे थे कि कोई कट करे. और दूसरी चीज, ऋषभ महाराज का आई थिंक 15-16 ओवर में उसको बॉल दिया था. उसका जो बॉल जो था ना उसमें इतना ग्रिप था, वो ऑफ स्टंप पे डाल रहा था और स्टार्टिंग में स्पिन होना शुरू हो गया था विद बाउंस बिकॉज द कीपर वाज कलेक्टिंग above his chest. And at that point, I thought, boss, Keshav Maharaj is going to be the X factor. He turned out to be the X factor. I think I'm very upset with Alec Arthanis. यार ये लड़का बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा खेलता भी है. He's been through a lot. He's worked very hard to be here in the West Indies. But again, it's just यार कार्लोस इनका जो कोच है ना उसने बोला था कि हम लोग ना यार एक दिन के लिए फील्ड पे फोकस कर सकते हैं या एक पूरा सेशन फोकस कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन 3 सेशन एक साथ इतनी हमारे में एक्सपीरियंस नहीं है लड़कों में कि वो इतनी मेंटल एबिलिटी रख सके कि यार 4-4 दिन 3-3 दिन उतने ही फोकस के साथ खेल सके. आपने कुछ बॉलें खेल रही फिर थोड़ा सा फोकस लॉस हो जाता है, फिर आप एक लूज शॉट खेल रहे हो और आउट हो जाते हो. वो तो यहाँ पे स्किल का मतलब नहीं है. जितना ये लड़के खेलेंगे टेस्ट मैच या रेड बॉल क्रिकेट उतना उनके लिए बेटर होगा. तो यार इस सिचुएशन में वेस्ट इंडीज शुड नॉट हैव बीन देयर. इट्स अ वेरी 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 फ्लैट विकेट टू बी ऑनेस्ट. बताया यार, सब बोल रहे थे कि वेकअप वेकअप वेकअप, एंड बाय द एंड अगर वेस्ट इंडीज लीड नहीं ले पाता है इस टेस्ट मैच में या वो ट्रेल करता है, दे विल हैव अ टफ टाइम बिकॉज फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करना और डिफिकल्ट होने वाला है इफ महाराज कंटिन्यूज टू ऑपरेट द वे ही इज. तो वो है. इनफैक्ट द पिच वाज सपोर्टिंग स्पिनर्स अ लॉट. एडन मार्करम ने भी 5 ओवर डाल दिया. ठीक है, इट्स नॉट यार But West चैलेंज Indies ये का था अगर पता देखा है, जाए तो मेरे को वेस्ट यार इंडीज ने मेरे को केमार रोच बहुत ज्यादा रस्टी लगा. Of course he picked up 2 wickets, कमिंग बैक आफ्टर एन इंजरी. but इंजरी yeah, से आ रहा है. he looked very rusty. But I just somehow, if I just talk about the first innings in South Africa, मेरे को Zorzi बहुत अच्छा लगा. He was trying to score a lot of runs. He get trying to nullify the spin also. मतलब neglect the score पूरा he played that reverse shot. और प्रॉब्लम ये हो गया कि मतलब उससे जस्ट पहले उसने मतलब वो क्या कहते हैं उस पे एक अच्छा सक्सेसफुल बाउंड्री मारी थी. बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट वाज वन शॉट टू मेनी एंड देन वो बेचारा आउट हो गया. But Bavuma, we've spoken about, exceptional, I think, under pressure. मतलब the way he was just striking the ball and creating room for himself. मतलब वो जिस तरीके से outside off जाके उसने जो कुछ shots मारे to fast bowlers as well as to spin. मतलब he was going against the turn and then trying to sort of play beautifully. मतलब वो बहुत अच्छा लगा.
And but of course, what I want to really focus today on at least South Africa is that I was really impressed with this new generation of players coming in, right? And one of them, of course, is this David Bedingham. एक है Ryan Rickelton and Kyle Vereen, if I'm Sorry. pronouncing it right, the wicket keeper, and Wayne Mulder. All of them looked exceptionally good. मतलब उतना मतलब solid technique लगा जिस तरीके से वो बॉल रोक रहे थे, the way they were watching the ball, and everyone I was watching, मतलब जो solid जिसे कहते हैं ना टेस्ट मैच टेक्निक, मतलब playing right under your eye, Hi. मतलब बिल्कुल वैसा वैसा डिफेंस था उन लोगों का यार, एंड द काइंड ऑफ स्ट्रोक्स दैट दे वर आल्सो प्लेइंग. बट मुल्डर की ऑफ कोर्स बात करी इयन बिशप ने भी ड्यूरिंग द गेम, एंड ही वाज कमेंटेटिंग एंड ही सेड दैट ही हैज अ लॉट ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस. लेसेस्टर के लिए खेलता है वो, और काफी मतलब एक्सपीरियंस वहां से लेके आया है, सिंस द मंथ ऑफ मे. इनफैक्ट वो काउंटी खेल रहा है वहां पे, खेल रहा था, और उसकी 250s हैं उसमें. ही डिडंट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट स्टिल आई थिंक great on South African selectors to at least pull him from there and still take him into the squad, क्योंकि इतना आसान नहीं होता. And I think he played really well. In fact, he was the one who was not out. He stayed not out for 41. And the wicket keeper was also very, very impressive. Another bowler who probably might have impressed you, Jumel Warrican, the left arm slow orthodox. उसने 4 विकेट निकाले दोनों. यार इम्प्रेस तो नहीं यार, ही बोल्ड वेल, ऐसा नहीं, चलो विकेट मिला. आई थिंक दे कुड हैव डन अ लॉट बेटर, बट जैसे तूने बोला डेविड, जैसे डेविड बेडिंगम है या फिर वाइन मल्डर है और रायन रिकल्टन एक्चुअली विकेट कीपर है. तो ये सब इतना काउंटी क्रिकेट खेल के आया था इतना, और काउंटी क्रिकेट में ना ये लोग बहुत रन कर, बहुत मतलब इट्स insane amount of hundreds that they score there. Hayden Seals also played county, but यार नहीं यार, Warrican and Gudukesh Moti both did not You can't compare him, have of the course, same to a amount. Maharaj yet. What I'm saying is that at least while the chips were down and while, let's say, the others weren't probably getting wickets, Jaden Seals, of course, उसने एक क्या कहते हैं अच्छी bowling करी, मतलब उसने भी 3 विकेट निकाले. But somewhere down the line you needed, क्योंकि आपका गुतकेश मोती का भी मतलब यार the actual spinner जो आपका front line spinner था, ठीक है, उसका कुछ विकेट नहीं था. So somewhere down the line someone had to come in and chip in and take those 10 wickets, right? ठीक है, ओके. तो पहले विकेट से स्टार्ट कर. पहली विकेट थी उसकी, टोनी डीजॉर की रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की उसने, फॉल शॉट. ठीक है. आई थिंक सेकंड विकेट वाज काइल वर्नर जिसमें कॉटन बोल्ड हुआ था वो. ठीक है. अगेन फॉल शॉट. ठीक है. आई थिंक बैकफुट पे था वो, आई डोंट रिमेंबर फॉल शॉट. देन The next one was also again cotton bowled, which was Keshav Maharaj. हाँ, which was Keshav Maharaj, which was just the first ball where he just tried to flick it and he just went there. I think the only delivery that I was impressed by was Kagiso Rabada's wicket, which was an absolute peach because it just moved away from Rabada because he's left-handed in batting. Yeah, he's left-handed batsman. It moved away from him and got the edge. But हाँ, यार मेरे को गुदकेश मोती से बहुत एस्पिरेशंस थी यार, क्योंकि उसने इंग्लैंड में अच्छी बॉलिंग की थी, स्टोक्स को बोल्ड किया था, पता है, सब करके बॉल अंदर आई थी. और ये उसका घर मतलब करेबियन है, यहाँ पे तो यार गुदकेश मोती को खेलना ही चाहिए. तो इसलिए मेरे को लगा कि यार गुदकेश मोती आएगा, 2-3 बैट पैड होगा, लेग स्लिप होगी, बट पता नहीं यार वो मैंने ब्रैथवेट का देखा है, पता है, एट वन पॉइंट इन टाइम ही ओपन्स अप द फील्ड टू मच. बहुत इजी सिंगल्स देता है वो. आई डोंट नो व्हाई, बट फॉर सम रीजन ही ओपन्स द फील्ड अ बिट टू मच. मे बी नॉट, आई But डोंट. Bradford यार पता है, he should be disappointed also. उसका ना इंटेंट ही नहीं था रनिंग में. जिस तरीके से वो आउट हुआ है, अगर आप उसका आउट हो फोटो गए. रखो, ठीक है, उसने मतलब कोई एफर्ट ही नहीं रखा यार कि मतलब मैं क्रीज पे मतलब बैट रख दूं, मतलब उसको there लगा ही नहीं wasn't. कि बॉल मार देगा वो, उसको लगा नहीं हाँ, वो थ्रो करेगा. वही साउथ अफ्रीका है ये. और यार बहुत ही बुरा लगा मेरे को, country where you're asking people to come and watch test cricket because you're playing, etc. I mean, it didn't really look 100% effort from the captain himself, and I think he should be very, very disappointed. That doesn't set a very good example as a leader, and it is very unfortunate that such things had to happen. But of course, the test match, I won't say is it's
reasonably well poised, but yeah, South Africa ahead at this point in time at the end of day 3. And yeah, hopefully we get to see a good test match. अभी तो जिस तरीके से लग रहा है probably हो सकता है कि अपने को ड्रॉ भी मिल जाए. So हमारे yeah, साथ with the weather around, and it's not looking good. But yes, these are the recent events that are happening in the world of cricket. But something, of course, as I committed last time around to all our viewers as to what's happening in the associate segment, which is something that I'd like to discuss. Some stories that I'd like to bring in out from there. कि किस तरीके से एसोसिएट नेशंस अब धीरे धीरे आ रही हैं और क्रिकेट स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे. एंड वन सच एग्जांपल इज महीको. महीको बोलते हैं, मतलब अगर वहाँ पे अगर स्पेनिश में क्या कहते हैं बोला जाए, ये मैंने सीखा था उससे जो एक सीरीज आई थी ना, नार्कोस. उसमें उसमें मेक्सिको को महीको बोलते हैं. बट स्टिल फॉर आवर व्यूअर्स I'd say that it's Mexico. तो मेक्सिको के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पे टू ऑल आवर व्यूअर्स, व्हिच इज मेक्सिको का जो यूनियन क्रिकेट क्लब है वो बहुत पहले एस्टैब्लिश हो गया था इनफैक्ट, और बहुत पहले से वहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है, व्हिच इज 1827. ठीक है. और जो उनका सबसे पहला द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मैच वाज इन 1865 बाय अ ट्रैवलर कॉल्ड विलियम बुलॉक. और वहाँ पे मेक्सिको में अभी भी मतलब जो इंटरनेशनल क्रिकेट है बहुत कम खेली जाती है. और इंटरनेशनल क्रिकेट बेसिकली वो सेंट्रल और साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप्स खेलते हैं अभी भी. और उसमें से एक बहुत अच्छा ये भी एग्जांपल है कि 2018 इनफैक्ट वो साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप जीते भी थे. दे वन द फाइनल अगेंस्ट यूरुग्वे जो खेल रही थी उनके साथ. एंड वहाँ पे ना एक क्लब which is the Reforma Athletic Club. ठीक है. वो 1894 से बनी हुई है और वहाँ पे दुनिया का सेकंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ वेयर इट इज सिचुएटेड. ठीक है. सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल टर्फ विकेट बनाया गया है मेक्सिको में. सो वहाँ पे खेलना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है. वहाँ का विंड स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, तो बॉल बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से स्विंग होती है. एंड मेक्सिको में दे हैव in their domestic structure somewhere around 18 tournaments, and which is of course played amongst players who are divided into 32 states. अभी तक वो 32 states में एक चीज मतलब क्रिकेट खेली जा रही है. एंड उनके पास टोटल एक्चुअली देखा जाए तो इन 32 स्टेट्स में मिला मिला के, मतलब कुछ ऑब्वियसली थोड़ी मर्ज्ड भी होती हैं, बट मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट मिला के भी इनके पास सिर्फ टोटल में 22 टीमें ही. And any guesses who's running the show there? Again, the same subcontinental, सारे मतलब इंडियंस ही खेल रहे हैं वहाँ पे. ठीक है. तो वहाँ जितने भी इंडियन कोच माइग्रेंट्स हैं वही जाके खेल रहे हैं. एंड उनके जो लीग्स हैं, जो डोमेस्टिक लीग्स, वो इतने अभी एमेच्योर हैं कि वहाँ के लोगों के जो क्लब के बंदे हैं वो अपनी पूरी जर्सीज भी नहीं खेलते. कई सारे लोग आपको फोटोग्राफ्स में विथ जीन्स एंड टी शर्ट वो सब ऐसे भी खेलते हुए देखते मिल जाएंगे. तो वो प्रॉपर ट्रैक्स भी नहीं पहनते कभी कभी. तो सो ऐसा चल रहा है वहाँ पे. बट इट्स पिक्ड अप पेस इन द लास्ट 5 years, एंड ऑफ कोर्स इट विल टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम इनफैक्ट टू रीच अ लेवल ऑफ, लेट्स से, अदर एसोसिएट नेशंस आल्सो. एंड वो थोड़ा अभी एक कह सकते हैं कि इट कैन बी अ 10-year प्लान फॉर देम to reach the level of, let's say, at least, if not more, than an Ireland and Scotland. Not an Ireland. Ireland, of course, is full nation, full member nation, but at least Scotland, या फिर even teams like Uganda और Papua New Guinea for that matter. वहाँ तक पहुँचना भी अभी उसमें टाइम है. पर मेक्सिको का ना एक recent development हुआ था, which is the Mexican Cricket Association was given an award by the ICC this year, and that was the ICC Development Initiative of the Year. ठीक है. इसमें दो बहुत ज्यादा हार्ट वार्मिंग प्रोजेक्ट्स हैं. ठीक है. एक है कि उन्होंने अपने बच्चों को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने भेजा था इंडिया में. ठीक है. सो व्हाट इज दिस, जैसा मैंने बताया कि
मेक्सिको को ये चीज मिली है, एंड ये ऑर्गेनाइज करती है एक कंपनी कॉल्ड एज स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड। एंड ये उन बच्चों के लिए है जो स्ट्रीट्स पे इनफैक्ट रहते हैं, जो वहां पे काम करते हैं, और इसमें दुनिया भर के बच्चे, ठीक है। और कई सारे लोग इनफैक्ट इन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, बट थ्रू दिस इनिशिएटिव ये कंपनी ये कोशिश करती है कि इसको, इन बच्चों को एक नई आइडेंटिटी मिले। एंड इनके एस्टिमेट से अगर आप देखा जाए तो सिर्फ चेन्नई शहर में, ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड 75,000 बच्चे हैं जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं, ठीक है। और ये लोग सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल और एथलेटिक गेम्स वगैरह भी खिलाते हैं। एंड इस प्रोग्राम के थ्रू ये बच्चों की मदद करते हैं। एंड ये 12 गवर्नमेंट्स के साथ इन लोगों ने टाई अप किया हुआ है अभी तक, ठीक है। एंड लास्ट ईयर युगांडा के बच्चे इनफैक्ट ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते इंडिया में जो हुआ था ये। एंड सो फार they've been able to secure about 867 passports of children, ठीक है। जितने बच्चे माइग्रेट हुए थे और जितने बच्चे अपना पासपोर्ट खो चुके हैं, कई बच्चे जो है घर से भाग के भी आए हुए हैं फॉर देयर ओन बैकग्राउंड रीजंस एक्सेट्रा, ठीक है। कई सारे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाया है, एंड एक नई आइडेंटिटी दी। और कौन कौन से देश अभी इसमें हैं तो देखा जाए तो इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मेक्सिको ऑफ कोर्स, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ये सारी कंट्रीज इसका एक पार्ट है। But one more project that they've been part of, and this is something that is very, very unique to Mexico, is that they have been, in fact, spreading cricket in the prisons of Mexico. ये एक ऐसा प्रोग्राम है, इट्स अ प्रिजन्स प्रोग्राम, एंड क्रिकेट सेशंस होते हैं मेक्सिको ये सारे सिटी में फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑल दीज इनमेट्स। एंड मेक्सिको यूनियन ऑब्वियसली ये स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के साथ, स्पोर्ट्स सेक्रेटेरिएट के साथ, मतलब ऑब्वियसली उन लोगों ने कोलैब करके, ऑब्वियसली इट्स प्लेड राइट नाउ इन 4 prisons as of now, and it's the reason why it is played, right? The Secretary of Sports says that the reason why we agreed to in fact play cricket in all these prisons is in fact it teaches the inmates to be respectful and very disciplined, right? And plus it also keeps them active, and because prison can actually be a very lonely place, right? So it keeps them active. And the other thing that we are doing is teaching them carpentry, क्योंकि जितने भी बैट्स बन के आ रहे हैं ना आजकल, उनमें से एक तरीके से ये समझ लीजिए कि 30% of the share is coming in from prisons because people in the prisons are actually making those bats. So again, it's something that is happening in 4 prisons as of now, and it is definitely going to spread into some more prisons as we speak. And of course, a lot of inmates say that हमारे लिए बहुत अच्छा है, something that keeps us going. One of the lady inmates, in fact, wants to now learn cricket as much as possible, and then once she is released from the prison, wants to get into the coaching role and then teach young girls, young women, in fact, to sort of play the sport and get to know the sport. So all this is happening in Mexico. Yeah, hopefully we get them or get to see Mexico in some form or the other. अभी तो बहुत दूर है, in fact, qualification stage के लिए भी, but at least with the amount of developments that are happening, and, with the amount of awareness that they are spreading, with so much of initiative, I just hope well for Mexico. Yeah, that's it from the associate nations side. ये मैंने सोचा कि एक हर एक एपिसोड में छोटा मोटा अगर हम बता दें कि छोटे मोटे देश क्या कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, it will help at least in getting to know their stories, because it's actually very tough for all those people who actually are in love with the game, somehow just want to be associated with it as players, uh, but all that you require at the end of the day in this capitalist world is money. Yeah, a lot of investment, guys. So we've discussed West Indies versus South Africa. We've discussed Pakistan, Bangladesh. We've discussed what might happen with India, and of course a little bit of Mexico there. कुछ कहना चाहते हो तुम? नहीं, ठीक है। देखो, बहुत सारे टेस्ट मैच आ रहे हैं अभी, हमें 1 महीना है, तो बीच में श्रीलंका पाकिस्तान भी होगा और श्रीलंका इंग्लैंड भी होगा, उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका देख लो एक बारी, और बांग्लादेश पाकिस्तान प्लीज देखना। बांग्लादेश इज सफरिंग एंड cricket might bring a little bit of joy to them.
And yeah, that's it. That's it, guys. That's it from today's episode. Yeah, it was great bringing you this episode again. And of course, as I keep mentioning, at least like button दबा दीजिए, कोई छोटा मोटा comment कर दीजिए, या फिर अपने किसी दोस्त के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, या जिसके साथ भी आप ये सारी वीडियो शेयर करना चाहे, जिनको ये इन्फॉर्मेटिव लगे या इंटरेस्टिंग लगे, तो आप शेयर कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबर भी बन सकते हैं. वी आर ऑन यूट्यूब, we are on Facebook, we are on Instagram, we are on X, Spotify, and Amazon Music. Thank you so much, guys, for watching. Thank you, guys.